Okay, machine learning. एक मिनट, एक मिनट. Just regression का application. Okay. Now regression on the basis of machine learning approach हुआ था. No, sir. ठीक है, just a minute. So testing phase. Okay. So now today I will discuss about the machine learning approach of regression. ठीक है. Machine learning approach of regression. तो किसी को याद है रिग्रेशन क्या होता है? Anybody remember the term regression? या इंटर्नशिप के चलते सब आउट ऑफ माइंड हो गया. Anyone? Anyone? What do you mean by regression? What do you mean by regression? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir. So see, I am just conducting this online class on the basis of your requirement. Okay, so if you are not going to interact with me in online mode also, then it is obvious very tough. So I will think that you are not interested anymore in online classes. Yeah, this is obviously off the record, so that I am making time out of the working hour. Okay, so if you will not interact with me, so I will think that you are not interested anymore. So if अगर तुमको सिर्फ क्लास करने के लिए क्लास करना है, I suggest don't do this online class. Just wait for offline. और अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट है, then only you have to arrange the online session. And अगर online session arrange करोगे, अगर interested हो, you have to interact with me. I am asking about what do you mean by regression. जरूरत नहीं है सही जवाब हो गलत जवाब हो, बस आई वांट टू इंटरेक्शन. याद है तो बोलो, नहीं याद है तो बोलो सर याद नहीं है, मैं और एक बार उसको पढ़ा दूंगा. जस्ट 2 और 3 मिनट्स लगेगा. लेकिन मैं जब कुछ पूछ रहा हूँ, म्यूट में मत रहो. एनी वन, आई एम से आस्किंग एनी वन, डू यू नो और डू यू रिमेम्बर व्हाट डू मीन बाय रिग्रेशन? बिकॉज फॉर ए लॉन्ग टाइम इफ आई विल सर नॉट. ये हाँ बोलो. हाँ बोलो. सर ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं कंटिन्यूस वैल्यू के बारे में, जैसे टेम्परेचर या फिर सैलरी, मतलब जहाँ दैट तक इज, याद आ रहा है सर ऐसा ही कुछ था. it is predictive one, and whenever we are going to predict something, that means we require some data, in the base of the statistical point of view. तो अगर मैं रिग्रेशन को बोलूंगा, एक बार मैं 2 मिनट के लिए रिग्रेशन को एक बार तुम लोगों को रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि रिग्रेशन है
थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड मैं एनालाइज करूंगा. आई विल एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन डेटास वेरिएबल्स, एंड आफ्टर द रियलाइजेशन इफ something can be predicted, future value can be predicted, then that will be known as regression. Now if machine learning has the ability to do the regression, then what will be the approach of regression in case of machine learning field? So first of all, in that case we have to train the data, that is training data. Okay, first of all we have to train the data. Train the data means I need some data, I will train the machine according to this data. Like तुम लोग अभी फोर्थ सेम में हो, right? Now what are the data you have to be trained, in which we can get some output, that is the subjects you are or you will study in your entire semester is the data, and you have to, we will train you as per the data. So in this, for this semester, the data, your subject is your data. Now we will train you uh, depending on the data or on the data in the entire semester. After passing this semester, new data will be there, new subjects will be there. ओके, सो ट्रेनिंग डेटा मतलब जो रिक्वायरमेंट है, मैं जिस बेसिस पे प्रेडिक्शन करूंगा, लाइक वेदर, वेदर को मैं अगर प्रेडिक्ट करूंगा तो मैं एक वेदर स्टेशन में क्या करूंगा, आई हैव टू ट्रेन द एंटायर सिस्टम, एंटायर सर्किट विद द डेटा ऑफ टेम्परेचर्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड मूविंग, विंड डायरेक्शन, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, विंड स्पीड कितना है, ये सब के ऊपर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा. तो रिग्रेशन के लिए भी मशीन लर्निंग अप्रोच पहला होगा, आई नीड द रिक्वायर्ड डेटा फॉर अ पर्टिकुलर प्रेडिक्शन, आई हैव टू ट्रेन द मशीन विद दैट डेटा, दैट इज ट्रेनिंग डेटा. सेकेंड क्या है, अगर मैं एक रिग्रेशन कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रिग्रेशन मींस आई हैव टू प्रेडिक्ट फ्रॉम सम प्रीवियस डेटा. So during that prediction, always I will verify whether the previous data is related to the upcoming prediction or not. Like suppose तुम लोग का exam, I don't know whether you are doing or not. Before giving any exam, okay, we will just go through the previous year questions, right? Yes or no? Yes, sir. हाँ, तो why we will do this? Can anybody say why we will do this, or why we are doing this? To go through the previous year questions. Why? What is the need? क्यों करते हैं हम ये लोग हम? Sir, to get idea about the questions. That is upcoming prediction. Okay. So Yes, यहाँ sir. पे क्या है, हम Prediction लोग क्या करते हैं. करते हैं, we are go through the previous year question in a supervised way, कि हम अपने आप को सुपरवाइज करते हैं कि इस चैप्टर से इतना नंबर का ये क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर, तो हो सकता है इस साल भी ये क्वेश्चन आएगा. तो दिस इज सुपरवाइज, एक मॉनिटरिंग, कि ये नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा लो, सिविल का एक क्वेश्चन उठा लो प्रीवियस और उसको सॉल्व करने लग जाओ, मैकेनिकल का एक क्वेश्चन उठा लो उसको सॉल्व कर रहे हैं. नो, यू विल ट्रेन योरसेल्फ विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन in a supervised way, that in such a way that that question must belong to the particular topic or particular syllabus. So this is next step is supervised learning, supervised learning approach. Okay, now the final one, according to the supervised learning, हम लोग क्या करते हैं, we will give the prediction through a model. So this is the machine learning approach of regression, and in this case obviously जहां तक मुझे याद आ रहा है, I gave you the example of this. Yes or no?
I gave that example. That is, one is dependent variable and independent variable. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So in that case, which one is the dependent variable? Y. Y. Very good. Dependent variable. And X is the independent variable. Okay. So now this is what you studied till now. Okay. So now this is all about your regression, classification, all are under supervised learning. Okay. Now next we have to move to our next topic, that is unsupervised learning. That is unsupervised learning. Okay. So now unsupervised learning means ये क्या क्या हो सकता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया? एनी क्वेश्चन क्या है? अनसुपरवाइज लर्निंग क्या क्या हो सकता है? एक बार फिर से बोलो. क्या क्या हो सकता है? तुम लोगों का बेसिक आइडिया से क्या? देखो, मैं जब सवाल पूछता हूं ना, डोंट बॉदर अबाउट वेदर इट विल बी राइट और रॉन्ग. ठीक है, तुम लोग का दिमाग में जो पहला स्ट्राइक कर रहा है तुम लोग वही बोलो. दो केसेस होगा, या तो तुम सही होगे या रेक्टिफाई करोगे आंसर को. ठीक है, सही हुए तो ऑल एंड गुड, गलत हुए तो ऑब्वियसली आई एम हियर टू करेक्ट यू. सो देयर इज नो बिग थिंग टू आंसर. ठीक है, तो तुम्हें आंसर तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, वो सही हो गलत हो, हमको सिर्फ जानना है कि अनसुपरवाइज ये जो टर्म है, जहां पे मेरा पर्टिकुलर सब्जेक्ट ओरिएंटेड हम प्रिडिक्शन डेटा को एनालाइज नहीं करते हैं, वो क्या क्या हो सकता है. अनसुपरवाइज लर्निंग क्या क्या हो सकता है? एनीवन? कुछ भी तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आए. ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है दिमाग में, पहला स्ट्राइक कर रहा है अनसुपरवाइज लर्निंग ये टर्म सुन के, आई वांट टू, क्या आ रहा है, क्या हो सकता है? गोल. ओके. तुलसी कुमार महातो. ओके. एनी अदर? सर इट मीन्स कि टेकिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी, जैसे कि सर हमें सर वेदर का डेटा चाहिए और हम सर उससे डिफरेंट कैटेगरी का डेटा को ये फीड कर रहे हैं. ओके, दैट मीन्स whenever we will deal with, good, very good. ठीक है, सही रॉन्ग वो अलग बात है, बट यू बोथ ट्राइड, दैट इज एनफ फॉर मी. ठीक है, दैट इज सुपरवाइज लर्निंग में क्या है, मेरा एक टारगेटेड ऑब्जेक्ट है कि मैं इस सेमिस्टर में 6 या 5 सब्जेक्ट को ही प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन करूंगा. नाउ लेट इट, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करो, थोड़ा और लार्ज स्केल में सोचो कि अगर तुम कोई कंपेटिटिव एग्जाम देने जाते हो या कोई टेक्निकल फील्ड में, तुम लोग का हम लोग का जो टेक्निकल फील्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, उसमें कोई एग्जाम देने जाते हो लाइक गेट. Now tell me, in which case you will face a larger syllabus, in your semester paper or gate paper? In your semester or gate, in which case you will face larger syllabus or larger content? Gate paper, sir. Gate.
तो देखो, अगर मैं बोलूंगा कि तुम जस्ट सो अनसुपरवाइज लर्निंग इज नॉट ए बिग डील, ठीक है। अगर मैं तुम लोगों को इसका आंसर पता है, ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, उसको अगर आंसर तुम लोग दे पाओगे, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग। तो अगर मैं बोलूंगा कि सेमिस्टर का प्रिपरेशन तुम लोग कैसे लेते हो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट, चलो मान लेते हैं ये मशीन लर्निंग को ही, ठीक है। अगर मैं पूछूंगा हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर योर सेमिस्टर एग्जाम फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन व्हाट विल बी योर आंसर? if I am asking ke how will you prepare yourself for machine learning on the basis of semester question, then what will be your answer? We will do the previous year questions and the topics that are in the syllabus. Okay. And next thing, then I am just replace the term machine learning. I am just asking that how will you prepare your GATE exam? How will you prepare yourself for your GATE exam? Then what will be your answer? Sir, for this we will connect to a platform and that is good. Okay. Okay, so देखो, for the first example, we are not giving too much effort. Just we are going for syllabus, and as per the syllabus, uh, previous year question, and then we will make some prediction regarding upcoming question. Okay, for supervised, that is semester paper. नाउ अगर मैं गेट को कंसीडर करूं, गेट पेपर, मैं क्या करूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पहला क्या है? ह्यूज डेटा सेट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर मच लार्जर देन सब्जेक्ट्स इन ईच सेमिस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले ही मैं डिसाइड करूंगा, लाइक सेमिस्टर एग्जाम में पहले टोटल सब्जेक्ट को कभी नहीं पढ़ूंगा गेट पेपर में। मैं क्या करूंगा, द सब्जेक्ट इन व्हिच आई एम स्ट्रॉन्ग, उसको मैं एक ग्रुप करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, थोड़ा मॉडरेट जो सब्जेक्ट है उसका एक ग्रुप बनाऊंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, जो हार्ड, जिस सब्जेक्ट में मैं वीक हूं, ठीक है, उसका एक ग्रुप बनाऊंगा। नाउ मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में मैं देखूंगा, कौन सा चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा चैप्टर इजी टू सॉल्व है, एंड कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन क्विक सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। मॉडरेट में क्या करूंगा, मैक्सिमम क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से, टॉपिक से आ रहा है, सब्जेक्ट से आ रहा है उसको देखूंगा, और वीक सब्जेक्ट जिसमें मैं वीक हूं उसमें मैं देखूंगा, मैं यहाँ पे भी देखूंगा मार्क्स ऑफ क्वेश्चन, कि कितना नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, ये है अनसुपरवाइज का एक क्राइटेरिया, कि मेरा डेटा सेट बहुत ह्यूज होगा, और ह्यूज डेटा सेट को मैं क्या करूंगा, छोटा छोटा सब ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, व्हिच आर नियरली सेम और सेम डेटा सेट। तो दिस इज नोन एज unsupervised learning. Now why it is called unsupervised learning? Why it is called unsupervised learning?
from the term unsupervised? विदाउट लेवल हम लोग पहचान रहे हैं कि क्या है, इसीलिए। ओके, ठीक है, कहीं हद तक सही है। देखो, जब तुम सेमिस्टर एग्जाम पार करते हो ना, तो देखोगे हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक टीचर तुमको असाइन किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक टीचर असाइन किया जाता है, who will supervise you regarding assignments, regarding assessment, regarding mid sem 1, mid sem 2 projects. These things are assigned, these things are done, these things will be done अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर। ठीक है ना। तुम जब गेट के लिए प्रिपेयर होगे ना, तो देखोगे बहुत सारा सब्जेक्ट्स रहेगा जो हो सकता है तुम्हारे टॉपिक में नहीं है, लाइक रीजनिंग, ठीक है, लाइक सम स्किल ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है, सम करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो ये सब के लिए टीचर नहीं है, तो ये सब क्या करना पड़ेगा तुमको विदाउट सुपरविजन। प्लस अगर तुम्हारा मिड सेम एग्जाम दे रहे हो या असाइनमेंट दे रहे हो या लैब रिकॉर्ड जमा कर रहे हो, व्हाट एवर असेसमेंट गिवन बाय द टीचर, दैट विल बी वेरीफाइड और दैट विल बी सुपरवाइज कि कहाँ पे तुम्हारा गलती हुआ है, कैसे करेक्ट कर सकते हो। ये सब टीचर या तुम्हारा जो मेंटर है या तुम्हारा जो फ्रेंड्स है, वो वहां से तुम लोग गेन कर सकते हो टू रेक्टिफाई योर डेटा। गेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे, तुम जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड होते हो, देयर इज नो सच अ सुपरविजन के सुपरवाइजर कि तुमको इसी क्वेश्चन को अटेंड करना है, इसी क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। द क्वेश्चन you will solve, it is your in your own way, okay, whether you are using long method or shortcut method, that is not bother, you have to bother about the answers। तो यहाँ पे क्या होता है, विदाउट नो सुपरवाइजर, सॉरी, नो सुपरवाइजर, दैट इज अनसुपरवाइज्ड, दैट इज अनसुपरवाइज्ड। तो अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं सुपरवाइज लर्निंग के साथ, तो इन सुपरवाइज लर्निंग द एम इज टू लर्न द मैपिंग, ओके, from the input to an output whose correct values are provided by the supervisor। that is, मैं एक input दे रहा हूं एक सिस्टम के थ्रू, मुझे एक आउटपुट देगा, एंड एंटायर एनालिसिस और एंटायर मैपिंग विल बी डन अंडर द सुपरवाइजर। नाउ इफ देयर इज नो सुपरवाइजर, then this learning is known as unsupervised learning। सो यहां पे मेन एम क्या है इन दिस अनसुपरवाइज लर्निंग? इसका पहला क्राइटेरिया है लार्ज नंबर ऑफ डेटा सेट। नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू मेक ग्रुप्स फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ वी आर follow some patterns, that is, follow some patterns to find or predict the output। ठीक है, दैट मीन्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज तुम लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, ठीक है, तो शॉपिंग मॉल में जा रहे हो, तो अगर एक काउंटर से दूसरे काउंटर, सपोज कोई ग्रोसरी का सामान खरीदेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या करते हो, एक शॉपिंग मॉल है और एक दुकान में क्या अंतर है, अगर उसको हम मशीन लर्निंग के डेटा के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ शॉपिंग मॉल एंड नॉर्मल शॉप? क्या अंतर हो सकता है? एक शॉपिंग मॉल और एक दुकान में क्या अंतर हो सकता है?
जो भी सर वहाँ पे आइटम्स मिलेगा उसका प्राइस जो रहेगा सर मॉल में फिक्स रहेगा और दुकान पे सर घटा सकते हैं बोल के। दैट इज बार्गेनिंग, दैट इज अनदर इशू। हाँ, मेन देखो, वेरी दुकान का एरिया देखो और एक शॉपिंग मॉल का एरिया देखो, डिफरेंस पता चलेगा एक दुकान को बाहर से देख के और एक शॉपिंग मॉल को बाहर से देख के। यस सर। तो दैट मीन्स दुकान में लिमिटेड सामान रहता है, शॉपिंग मॉल में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा रहता है। ठीक है, नाउ जैसे मैं शॉपिंग दुकान में जाता हूँ, देखोगे वन बाय वन तुम दुकानदार को पूछते हो, वो बताता है कि है कि नहीं, और अकॉर्डिंग टू दिस यू आर गोइंग टू बाय सम सामान और थिंग्स। नाउ शॉपिंग मॉल में जब हम लोग जाते हैं, देखोगे तुम्हें किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कि किसी को बोलने की जरूरत नहीं है मुझे एक पैकेट चाय पत्ती दो। ठीक है, तुम क्या करोगे, चाय पत्ती का जो स्टॉक है वहां से उठा के उसको कार्ट में रखोगे। ओके, सो दैट इज अनसुपरवाइज। नाउ यहाँ पे क्या होता है, सपोज तुम ग्रोसरी का सामान खरीदने जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे, दुकान में घुसते ही तुमको ऑलरेडी दुकान का नक्शा तुम कहीं डाउनलोड नहीं करते हो, या घुसने से पहले किसी को पूछते नहीं हो कि ग्रोसरी का सामान कहाँ मिलेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस। या तुम मैप वहां पे ऑन नहीं करते हो, तो तुम घुसते ही देखोगे, पहले देखोगे एक शॉपिंग मॉल, जस्ट इमेजिन, हाँ एक शॉपिंग मॉल में घुस रहे हो, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा सामान है। नाउ तुम क्या करोगे, एक नजर सबको देख लोगे। नाउ यू विल मेक अ ग्रुप्स, कि तुमको देखते ही पता चल जाएगा ग्रोसरी का सामान किधर है, किधर तुम्हारा गारमेंट्स का सामान है, किधर तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, किधर तुम्हारा फुटवेयर है। ठीक है, तो वहां से तुम एक ग्रुपिंग कर लोगे, कि जहां पे देखोगे लिखा थोड़ा बहुत सामान, वो दाल चावल का बस्ता या चिप्स का पैकेट दिखाई देगा, कोल्ड ड्रिंक्स का स्टॉल दिखाई देगा, दैट मीन्स तुम बाहर से ही, मतलब दूर से ही प्रेडिक्ट कर लोगे कि वहां भाई ग्रोसरी का सामान है। तो ये हो गया, तुम ग्रुप बना लिए लास्ट डेटा सेट से। नाउ तुम एक पैटर्न फॉलो करोगे, कि मुझे अगर चावल खरीदना है तो मैं देखूंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स का फ्रिज जहां पे है, ऑब्वियसली मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि जहां पे आटा का कीमत डिस्प्ले किया हुआ है या दाल का कीमत डिस्प्ले किया हुआ है, मैं सीधा उस साइड में जाऊंगा। ना तुम्हें बिस्किट खरीदना है, ऑब्वियसली तुम आइसक्रीम के रेफ्रिजरेटर की तरफ नहीं जाओगे, तुम देखोगे जहां पे चिप्स का पैकेट, लॉजेंस का पैकेट, मिक्सचर का पैकेट रखा हुआ है, तुम उसी काउंटर में जाओगे। तो ये कैसे हो रहा है, दिमाग इसको कैसे क्रिएट कर रहा है, दिमाग क्या कर रहा है, वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, कि आटा चावल दाल ये सब सेम पैटर्न। ठीक है, वो एक पैटर्न में है, तो दिमाग ऑब्वियसली उसको डिसाइड कर दे रहा है कि सिंस चावल इज फॉर अंडर दिस पैटर्न, दैट इज दाल आटा, दिस पैटर्न शक्कर, दिस पैटर्न, तो वो क्या करेगा, प्रेडिक्टेड आउटपुट दिखाएगा कि हाँ चावल का काउंटर इधर है। बिस्किट, बिस्किट का पैटर्न क्या है, स्नैक्स का पैटर्न, और स्नैक्स का पैटर्न में क्या आता है, चिप्स, तुम्हारा डेयरी प्रोडक्ट, कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स, मिक्सचर, ये सब आता है। तो दिमाग क्या करेगा, ये प्रेडिक्ट आउटपुट करेगा कि सिंस बिस्किट इज अंडर द स्नैक्स पैटर्न, सो मे बी इन दैट section of the counter maybe there is some packets of biscuit. Now got my point, what is your unsupervised learning, क्लियर हुआ? अगर किसी को 0.5%, 0.1% भी डाउट है, ठीक है, रेज योर हैंड। इफ एनीवन हैज any doubt regarding up to this, regarding unsupervised learning, raise your hand. ओके, हाँ अंजलि बोलो, क्या डाउट है? फिर अगर एक लाइन में कहा जाए कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है क्या, मतलब प्रॉपर, तो उसके लिए क्या टर्म डिफाइन करेंगे? Unsupervised learning है your a learning process where there is no supervisor, ठीक है, and as well as we have only input. In case of supervised learning में क्या है, I have to compare the output according to the input under a supervision,
इन केस ऑफ अनसुपरवाइज मेरे पास सिर्फ इनपुट है, आई डोंट हैव आउटपुट। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम जब चावल खरीदने जा रहे हो शॉपिंग मॉल में या बिस्किट खरीदने जा रहे हो, ठीक है, कोई तुम्हें बताएगा क्या नहीं कि काउंटर नंबर 5 का सेकेंड रो में तुम्हारा बिस्किट का पैकेट है, या काउंटर नंबर 6 का थर्ड बोरी में तुम्हारा चावल रखा हुआ है? कोई बताता है? नहीं सर। तुम क्या करते हो? तुम्हारे पास सिर्फ इनपुट है कि मेरा चावल खरीदना है या बिस्किट खरीदना है, ये सोच के तुम जाते हो। नाउ जाने के बाद तुम देखते हो ह्यूज डेटा सेट, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है, ग्रुप कर लेता है कि मुझे कहाँ पे जाना है। अगर तुम लेडीज सेक्शन में चले जाओ, लेडीज तुम्हारा गारमेंट सेक्शन में चले जाओ, तो वहां पे जाके तुमको चावल मिलेगा? नो सर। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में जाओ, तुमको चावल मिलेगा? नो सर। तुमको जाना कहाँ है? ग्रोसरी सेक्शन में। ग्रोसरी सेक्शन में, ठीक है। वो ग्रोसरी सेक्शन पता कैसे चलेगा? सपोज तुम किसी को पूछ नहीं रहे हो, बिकॉज अनसुपरवाइज लर्निंग, हाँ मुझे किसी का सुपरवाइज विजन नहीं चाहिए, तुम किसी को पूछ नहीं रहे हो, नाउ तुम्हें पता कैसे चलेगा कि ग्रोसरी सेक्शन किधर है? सर देख कर। क्या देख के? तुम तो पूरा शॉपिंग मॉल नहीं देखना चाहोगे, ठीक है। नहीं तुम, सर, जैसे सामान रखा होता है, हाँ बोलो। जैसे सामान रखा, जैसे हम मेरे को चावल लेना है तो आटा और बाकी सारा चीज दैट जो इज भी रहेगा वहाँ दैट पे वो इज सब देख के ग्रुपिंग, पता चल जाएगा। दैट इज ग्रुपिंग एंड पैटर्न फॉलो, ठीक है। तो वो तुम्हारे सब ओके इनपुट से सर। पता चल रहा है, तुम्हारा आउटपुट से पता नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे पास इनपुट है सिर्फ चावल या बिस्किट खरीदना है, तो that is unsupervised learning. So if I want to define that unsupervised learning, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना, in unsupervised learning there is no supervisor and entire output prediction will be done with an input only, ठीक है। ओके सर। ओके, नाउ अब मैंने तो बता दिया कि अनसुपरवाइज लर्निंग में कैसे तुम्हारा आउटपुट प्रेडिक्ट करोगे। नाउ अब ये मशीन कैसे करेगा? इसको तो मशीन में कराना है ना, तो मशीन कैसे करेगा? तो देखो, जैसे ही मेरे पास इनपुट डेटा आता है, इनपुट डेटा, तो मैं क्या करता हूं, ये लार्ज इनपुट डेटा, बेटर से लार्ज इनपुट डेटा, तो मैं क्या करता हूं, इसको एक ग्रुपिंग कर लेता हूं। ग्रुपिंग किसके बेसिस में करता हूं? बेसिस, ग्रुपिंग किसके बेसिस में करता हूं? दैट इज सिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज। एंड आफ्टर, ये सिमिलरिटीज के बेसिस में ग्रुपिंग करता हूं। नाउ आफ्टर ग्रुपिंग में क्या करता हूं, पैटर्न करता हूं एंड देन आउटपुट प्रेडिक्शन, ठीक है। नाउ ये जो ग्रुपिंग सिमिलरिटीज, ये तो दिमाग कर लेता है अपने से, उसमें हम लोग उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। नाउ मशीन, ट्रीट मशीन एज अ न्यूबॉर्न बेबी, the way you will treat, the way you will learn the machine, ठीक है, you will teach the machine, sorry not learn, the way you will teach the machine will learn from you। तो ये जो ग्रुपिंग में सिमिलरिटीज के हिसाब से उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा। आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू जस्ट बिकॉज मे बी यू आर नॉट hear this term before, maybe you can hear this term before, but most of the cases it is a high chance to not to use to about this term, that is, अगर तुम लोगों को पता है, ठीक है, बताना, ठीक है। Have you heard this term? सर क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग करना। ठीक है, ग्रुपिंग किस बेसिस पे?
सिमिलैरिटीज के बेसिस पे। दैट इज गुड। ठीक है, दैट मीन्स यू नो दैट टर्म। ओके, सो Yes, sir. क्लस्टरिंग, ये एंटायर जो ग्रुपिंग होता है तो क्लस्टरिंग। सो आई कैन से क्लस्टरिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस in unsupervised learning to predict the output। ठीक है, now what do you mean by clustering? Clustering तो एक प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस किसको कहते हैं? जस्ट अ मिनट, हाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो क्लस्टरिंग किस चीज का नाम है? ये तो एक प्रोसेस है, लेकिन ये होता क्या है? सो एज यू टोल्ड विच इज राइट, ठीक है, दैट इज क्लस्टरिंग इज द टास्क ऑफ डिवाइडिंग द पॉपुलेशन और डेटा इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो अगर मैं क्लस्टरिंग को डिफाइन करूंगा, ठीक है, तो क्लस्टरिंग को अगर डिफाइन करूंगा, डिवाइडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, ये एक नया टर्म है ये पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मीन्स एंटायर डेटा सेट, ठीक है, पॉपुलेशन और डेटा पॉइंट इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स such that data points in the same groups are more similar to other data points, ठीक है। now like if I have a large data set, suppose x number of datas are there, x is the main population having data set x, y, z, a, b, c, d, e, f. So okay, now this is a large data set, this is a data set. Now among these, your x, b, e are same kind data, y, c, a, f another same kind of data, and z, d, 7, 8, 9, 5, हाँ, x and d are same kind data, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई हैव टू क्लस्टर देम। नाउ इफ x of x, y, z, a, b, c, d, e, f are there, देन मैं इसको क्लस्टर क्या करूंगा, क्लस्टरिंग में कैसे डिवाइड करूंगा, x1 of which data are the same kind of data, x, b, e, so x, b, e, next cluster is x2, and in this case y, c, a, f, y, c, a, f, and third one is x3, that is z and d. So these individual groups, each groups, the process of making these three individual groups by taking same kind of data is known as clustering। तो क्लस्टरिंग ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आया, आस्किंग फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. ओके, नाउ ये तो मेरा क्लस्टरिंग हो गया, ठीक है। नाउ क्या होगा आफ्टर क्लस्टरिंग, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू आफ्टर क्लस्टरिंग? हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस, अब मैं प्रोसेस की तरफ पकड़ रहा हूं, ठीक है। तो सपोज ये एंटायर पॉपुलेशन है एंड मैं यहाँ पे 3 सेट ऑफ डेटा यूज कर रहा हूँ, लाइक
x, this is x1, x2, x3. It has x, b, e, y, c, sorry, y, c, a, f, and in this case z and d. So now यहां मैं अब क्या करूंगा? I have to find out the centroid of each cluster. Now यहाँ पे एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सेंट्रॉइड. ठीक है, तो कैन एनीवन से और एनीवन हैव सम नॉलेज अबाउट द टर्म सेंट्रॉइड? किसी को कुछ पता है ये सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड क्या हो सकता है? सर सेंटर ऑफ द डेटा क्लस्टर. सेंटर ऑफ द डेटा. नाउ एक डेटा का सेंटर क्या हो सकता है? लाइक मैं अगर इसको एग्जांपल दे दूं कि सपोज एक, लेट इट बी, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ. ठीक है, शॉपिंग मॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ. लाइक मैं लिख रहा हूँ एक्स इज बिस्किट, सॉरी, एक्स इज cookies, b is biscuits, e is mixture. ठीक है, next is y is your rice, c is sugar, a is your, let it be wheat, and f is dal, lentils. ठीक है, next z equal to your shirt, d equal to d is stands for your, suppose, track suit. ठीक है, now take any crystal, sorry, take any cluster x1 or x2 or x3. now अगर मैं बोलूंगा क्लस्टर 1 दैट इज x1, x2, x3. ठीक है, x1 का सेंट्रॉइड क्या हो सकता है? दिमाग को लगाओ काम में थोड़ा. x1 का सेंटर क्या हो सकता है? स्नैक्स. हाँ बोलो. हाँ कोई कुछ बोल रहे थे, बोलो. सर स्नैक्स. स्नैक्स तो टोटल प्रोडक्ट का नहीं है. ठीक है, कैटेगरी. सेंट्रॉइड मतलब इसका मेन कॉमन प्रॉपर्टी क्या हो सकता है? सर इन तीनों का तो अरिथमेटिकल मीन निकालना पड़ेगा ना. नॉर्मल तुम्हारा जनरल नॉलेज से बताओ ना, अरिथमेटिक मीन कुकीज का कैसे निकालना? बोलो. Sir, it may be biscuit B. इट मे बी बी. नो, मैं सेंट्रॉइड दैट इज, देखो इन x1 को अगर मैं कंसीडर करूं तो देखो तीनों जो प्रोडक्ट है रेडी टू ईट, यस और नो? यस सर. यस ना, रेडी टू ईट. कुकीज तुम पैकेट लाओ, डायरेक्ट खोलो खा लो. बिस्किट पैकेट लाओ, डायरेक्ट खोलो खा लो. मिक्सचर पैकेट खोलो खा लो. दैट इज रेडी टू ईट. ठीक है, नेक्स्ट इज x2. अब बोलोगे सर शुगर भी तो हम डायरेक्ट खाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स वाई, शुगर का एक प्रॉपर्टी है डायरेक्ट टू ईट,
बट अदर जो प्रॉपर्टीज है वहां अगर टोटल एंटर प्रॉपर्टी को मिलाया जाए तो देखोगे YCAF में जो है दैट इज X2, दे हैव टू प्रोसेस टू इट। दैट मीन्स शुगर को तुम अगर चाय के साथ खाना चाहोगे, ठीक है, तो यू हैव टू प्रोसेस विथ टी। शुगर को साथ को अगर तुम किसी डिश में इंट्रोड्यूस करना चाहोगे लाइक केक्स, ठीक है, लाइक सम पुडिंग्स, आइसक्रीम्स, ये अगर तुम बनाना चाहोगे तो देखोगे इट हैज टू बी प्रोसेस्ड। तो यहाँ X2 का तुम्हारा सेंट्रॉइड क्या है? आई हैव टू प्रोसेस दैट, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो सबका कैरेक्टरिस्टिक इक्वल है। नाउ X3, इसमें क्या है? अब बोलना मत सर पहन सकते हैं ना, दिस इज कॉमन। सेंट्रॉइड क्या हो सकता है? सेंट्रॉइड मीन्स कोर कॉमन थिंग, ठीक है। क्या हो सकता है? शर्ट और ट्रैक सूट। एनी आइडिया? एनी आइडिया? क्लोथ है सर। क्लोथ का प्रॉपर्टी क्या है? क्लोथ का सेंट्रॉइड क्या है? दैट इज ऑल मेड अप ऑफ फैब्रिक्स, ठीक है। क्लियर? जितना भी तुम क्लॉथ आइटम है ऑल आर मेड अप विथ फैब्रिक्स। फैब्रिक उसका सेंट्रॉइड है। तो देखो ये क्लस्टरिंग के लिए मेरा पहला जो क्राइटेरिया है, आई हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड, ठीक है। एंड ये सेंट्रॉइड इज द कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लस्टर which can be satisfied or which is the characteristics that satisfied by all the data in that particular cluster। याद रहेगा सेंट्रॉइड क्या होता है? यस सर। ठीक है, दैट इज योर अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अनसुपरवाइज लर्निंग, ये एंटायर जो लर्निंग है दैट इज क्या करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है, ह्यूज डेटा सेट है, तो मल्टीपल ऑफ डेटा सेट्स आर देयर, मल्टीपल ऑफ डेटा सेट्स, ठीक है। पर्टिकुलर एक डेटा सेट को लेके मेरा काम नहीं है, मल्टीपल ऑफ डेटा सेट्स। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे सेंट्रॉइड निकाल के उसको एज पर द सेंट्रॉइड में उसको इंडिविजुअल क्लस्टर में डिवाइड करूंगा। नाउ इंडिविजुअल क्लस्टर में डिवाइड होने के बाद मैं क्या करूंगा, उन लोगों का पैटर्न आइडेंटिफाई करूंगा। नाउ ड्यू टू दिस पैटर्न आइडेंटिफिकेशन मैं क्या कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर क्लस्टर को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर क्लस्टर को, सॉरी, अगर मैं पर्टिकुलर एक मिनट क्लस्टर को कंसीडर कर रहा हूं, पर्टिकुलर लेट इट बी दिस क्लस्टर, ठीक है। तो मैं अगर इसको कंसीडर कर रहा हूं दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, इस क्लस्टर के अंदर जितना भी डेटा सेट है उसको एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, ठीक है। एक दूसरे के साथ एसोसिएट कर रहा हूं, दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ लर्निंग, दिस काइंड ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग is also termed as association learning। Got that point? Yes, sir. Okay, now anybody has any doubt up to this?
आई एम आस्किंग बिकॉज देखो ये ऑनलाइन सेशन है, हो सकता है ऑफलाइन सेशन में जेस्चर या डायरेक्ट आई कांटेक्ट या डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन से कुछ चीज समझ में आता है, वो चीज हो सकता है ऑनलाइन में नहीं हो। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द ईच पर्सन। तो मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कोई 1% भी डाउट ना रहे, तो इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। अप टू दिस एनीबडी हैज एनी डाउट और कंफ्यूजन? सर इसको डिफाइन कर दीजिए फिर से, किसको? एसोसिएशन लर्निंग। एसोसिएशन लर्निंग में स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, अप टू दिस अनसुपरवाइज लर्निंग अभी तक जो हुआ है, अभी तक एनी डाउट और एनी क्वेरीज? नो सर। एवरीवन ना? ओके तो सर सेंट्रॉइड में सर हाँ सर सेंट्रॉइड में तो ये सारे क्लस्टर के डेटा का मीन निकालना पड़ता है ना? हाँ, दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेशन करेंगे तो सारे कॉमन डेटा जो है, कॉमन फीचर को हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दैट इज यू कैन से मीन। मतलब कि सर जैसे कि क्लस्टर 1 में था सर बिस्किट मिक्सचर और हाँ एक कुछ था हाँ, दैट स्नैक्स इज का ही, तो सर उसमें तो सर अगर मैथमेटिकली अगर वहाँ लिखेंगे तो सर बिस्किट प्लस मिक्सचर प्लस कुकीज नहीं, ये तो डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का 3 नाम है, ये प्रोडक्ट का नाम है। अगर मैथमेटिकली लिखोगे तो तुमको लिखना क्या है? बिस्किट का क्लस्टर का सर। प्रॉपर्टीज, बिस्किट का प्रॉपर्टीज, कुकीज का प्रॉपर्टीज और तुम्हारा मिक्सचर का प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ तो सर अरिथमेटिकली कैसे वहाँ पे लिखेंगे सर? अरिथमेटिक सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, अरिथमेटिक तो क्लस्टर देखो, क्लस्टर जो है ह्यूज डेटा सेट, मैं यहाँ पे 3 डेटा दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ मैं क्या कर रहा हूँ, एक है तुम्हारा सपोज नंबर का क्लस्टर है, नंबर का क्लस्टर। ठीक है, दूसरा है तुम्हारा वर्ड का क्लस्टर और तीसरा है तुम्हारा सिंबल का क्लस्टर। नाउ मीन में इन द सेंस इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का मीन नहीं, इसका प्रॉपर्टीज का मीन। ठीक है, दैट्स वाई मैं आऊंगा जब एसोसिएशन लर्निंग कराऊंगा तभी, दैट्स वाई ये जो है पैटर्न फॉलो। ठीक है, पैटर्न ये जो टर्म है, यू हैव टू कीप इन माइंड पैटर्न। मुझे ये नहीं कि एग्जैक्ट जो न्यूमेरिकल आ रहा है उसको मैं मीन निकालूं। ठीक है, मेरा क्या है पैटर्न के नंबर का क्लस्टर जो है, यहाँ पे मैं देखूंगा कि इस क्लस्टर में जितना भी डेटा है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ का सेंट्रॉइड क्या निकालना है, मैं एंटायर नंबर का एक वैल्यू लेके उसको मीन निकालूंगा एंड मैं देखूंगा वो मीन, वो सेंट्रॉइड, ठीक है, मैक्सिमम जो डेटा वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर फॉलो कर रहा है इट विल कम अंडर दिस नंबर क्लस्टर। सिमिलरली वर्ड, वर्ड में देखो, वर्ड में बहुत सारा क्लस्टर है। ठीक है, एक है इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, मैं बंगाली, तमिल, ठीक है, फिर रोमन, जर्मन। तो मैं क्या करूंगा, मैं जब क्लस्टर बनाऊंगा मैं टोटल का मीन नहीं निकालूंगा, मैं एक इंग्लिश का ग्रुप बनाऊंगा जिसमें देखूंगा मीन मतलब एक पर्टिकुलर डेटा पैटर्न, दैट मींस इज रिलेटेड टू पैटर्न, नॉट द न्यूमेरिकल और अल्फा अरिथमेटिकल वैल्यू, पैटर्न वैल्यू। ठीक है, वो हम आगे जाके देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े, आगे जाके जब एसोसिएशन लर्निंग में अनसुपरवाइज देखेंगे तो हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी या कुछ कैलकुलेशन, कुछ एल्गोरिदम लगा हुआ है, वो एल्गोरिदम डिफाइन करता है पैटर्न, ये मिनिमम पैटर्न जो फॉलो करेगा उसको हम पर्टिकुलर दिस क्लस्टर में डिफाइन करेंगे। ठीक है, सिंबल, बहुत सारा सिंबल है, तुम्हारा लैटिन सिंबल है, तुम्हारा जर्मन सिंबल है, तुम्हारा ग्रीक सिंबल है, तुम्हारा इंग्लिश सिंबल है। तो मैं देखूंगा मैक्सिमम जो सेंट्रॉइड है वो मिनिमम किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मीन टर्म।
that doesn't mean is it has some value. I have to find out that value. Got it? यस सर. ठीक है. तो that's why मैं ये टर्म यूज नहीं कर रहा हूँ कि मैथमेटिकल मीन और मीन वैल्यू. ठीक है, मैं ये टर्म देखोगे कभी अभी तक यूज नहीं किया हूं, क्योंकि तुम लोग कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये मीन इज रिलेटेड टू मैथमेटिकल वैल्यू. ठीक है, और जहां पे मेरा मैथमेटिकल वैल्यू है वहां पैटर्न है, वहां पे नॉट ओनली मैथमेटिकल वैल्यू इज कंसिडर्ड बट आल्सो देयर योर सम क्या कहते हैं उसको, पैटर्न. दैट इज पैटर्न को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसको लिख पाएंगे वे टू रिप्रेजेंट. वे टू रिप्रेजेंट. ठीक है, ये वे टू रिप्रेजेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे. लाइक देखोगे हम लोगों का अभी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आया है कि पिक्चर दिखा दो. एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. ठीक है, কি হলো গো? আরেকটু. ओके, अगेन सॉरी फॉर द, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है. नहीं, अभी इसमें अभी तक हम लोग न्यूमेरिकल में एंट्री नहीं किए. ठीक है, अभी तक टिल नाउ वी आर नॉट एंटरिंग इन द न्यूमेरिकल पार्ट. ठीक है, जितना भी है अभी तक हम लोग थियोरिटिकल पार्ट में. ठीक है, तो अभी तक क्लियर हुआ कि ये मीन, दैट मीन इज नॉट रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल वैल्यूज. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस सर. So should I process for association learning, or it will be covered in next session? Should I go for next topic, or okay, if I will go for the if you want me to go to the next topic, association learning, just raise your hands. Abhishek Kumar, Kumari. Okay, okay. That's enough. Okay. सो नाउ आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम. ठीक है, और मैं हार्डली 10 मिनट, तो 10 मिनट में जितना हो सके मैं जस्ट स्टार्ट कर दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास वी विल गो टू द डिटेल पार्ट, बिकॉज ऑब्वियस ऑलरेडी यू हैव लर्न मेनी टर्म्स, सो दैट इफ न्यू टर्म्स विल बी देयर यू मे बी कंफ्यूज. ठीक है, तो मैं जस्ट इसका एसोसिएशन लर्निंग शुरू कर रहा हूँ. ठीक है, तो एसोसिएशन लर्निंग क्या है, अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा, that is association learning. ठीक है, मैं इसको अगर डिफाइन करूंगा तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस टू फाइंड द relationship between the data and expressing it as association rule. ठीक है,
नाउ एक बार सब पढ़ लो अपने आप में. It is the process to find the relationship between the data and expressing it as association rule. तो मेन है एसोसिएशन लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव्स है आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा. ठीक है, तो मैं डेटा के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करूंगा एंड आफ्टर एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप आई हैव टू मेक अ डिसीजन कि वो किस पैटर्न में या क्या आउटपुट दे सकता है. ठीक है, तो नाउ यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसका जो गोल है, गोल व्हाई व्हाई दिस एसोसिएशन रूल इज यूज्ड. ठीक है, मैं जो एक मिनट मैं जो कुछ भी अभी पढ़ूंगा whatever I will learn, ठीक है, वो सबका एक गोल है. ठीक है, तो यहाँ पे एसोसिएशन रूल का भी एक गोल है, दैट इज गोल. इसका गोल है टू अनकवर हिडन रिलेशन सॉरी hidden relationship or patterns within data. ठीक है, तो ये क्या है, सपोज मैं जो शॉपिंग मॉल का तुम्हारा एग्जांपल दिया हूं, तो मुझे बताओ हाँ या ना में. ठीक है, बताना, मैसेज मत करना, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन स्विच करूंगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग. ठीक है, तो मुझे माइक ऑन करके हाँ या ना में आंसर देना. कोई भी बिस्किट का पैकेट में या कोई भी स्नैक्स का पैकेट में, मिक्सचर का पैकेट में, क्या ये लिखा रहता है कि दिस इज कमिंग अंडर स्नैक्स कैटेगरी? नो सर. तो No, ये sir. नहीं रहता है, तो हम ये जो इसको स्नैक्स में इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड क्यों, किस बेसिस पे करते हैं, सम हिडन रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स. कि बिस्कुट का एक पैटर्न है, मिक्सचर का पैटर्न है, तुम्हारा कुकीज का पैटर्न है, ये सब का पैटर्न, हिडन पैटर्न और हिडन रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश करके एक डिसीजन पे आते हैं कि नहीं भाई ये सब तो तुम्हारा स्नैक्स के अंडर आता है. ठीक है, सो यही एसोसिएशन लर्निंग का मेन मोटो है कि जो हिडन रिलेशनशिप है, जो तुम्हारा एक्सप्रेस नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम एस्टेब्लिश करेंगे और उस पैटर्न को एस्टेब्लिश करेंगे फ्रॉम द लार्ज डेटा. तो ये इसका गोल है. नाउ ये गोल को अचीव करने के लिए आई हैव टू फॉलो फ्यू मेथड. सो इसमें मेथड क्या है, तो लाइक इट यूजेस एल्गोरिथम algorithms, and in this association learning we are using a priori algorithm. Priori algorithm. ठीक है, a priori algorithm. Another one is AP growth algorithm. So we will see in upcoming classes. ठीक है, in detail. अभी अभी के लिए जरूरत नहीं है. ठीक है, तो ये मेथड हम लोग यूज करेंगे. दिस एल्गोरिथम आई हैव टू यूज a priori algorithm and AP growth algorithm to find out the uncover hidden relationship or patterns within the data. ठीक है, नाउ सपोज देखोगे फ्लिपकार्ट में या अमेजोन में सब शॉपिंग करते हो, मैंने ये एग्जांपल ऑलरेडी क्लास में दिया हुआ है कि तुम लोग जब एक चीज बाय कर रहे हो, ठीक है, या तुम लोग जब एक चीज को सर्च कर रहे हो,
तो क्या है, पर्टिकुलर दिस ओरिएंटेड सर्च ही तुमको सजेशन बॉक्स में लाएगा। इवन तुम लोग जो ओटीटी प्लेटफॉर्म में वेब सीरीज देखते हो, देखोगे, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस और नॉट, वहां पे लिखा रहेगा सिंस यू वॉच्ड दिस वेब सीरीज सो यू मे लाइक दिस। आता है कि नहीं? आता है कि नहीं, कि तुम लोग एक वेब सीरीज देख रहे हो, जैसे सपोज कोई भी एक वेब सीरीज पकड़ लो। रिसेंटली मैं पंचायत का बात ही बोल रहा हूँ। पंचायत तुम लोग अगर प्राइम में देख रहे हो, तो देखोगे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे लिखेगा यू मे लाइक दिस अदर वेबसाइट्स सेम बेस, दैट इज तुम्हारा ये तुम्हारा नेचुरल सब्जेक्ट के ऊपर, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके जितना भी वेबसाइट्स है, सॉरी वेब सीरीज है, उसका एक सजेशन दे देगा। यस और नो? हैव यू एवर नोटिस्ड? यू मे Yes, ऑल्सो sir. लाइक, ठीक है, यू यस मे सर। ऑल्सो लाइक बोल के एक सजेशन दे देगा। तो ये क्या कर रहा है, ये अपने आप तुम्हारा ह्यूज डेटा सेट, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में तुम्हारा न्यूमरस नंबर ऑफ वेब सीरीज है, कंटेंट है, मूवीज है, ठीक है, वीडियोस है, न्यूमरस नंबर ऑफ कंटेंट्स आते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारा हिडन अनकवर हिडन रिलेशनशिप, कि तुम किस टाइप का वेब सीरीज देख रहे हो। तो वहां पे वो क्या कर रहा है, एक रिलेशनशिप निकाल रहा है कि किस जॉनर का तुम वेब सीरीज देख रहे हो, किस एज ग्रुप का वेब सीरीज देख रहे हो, और किस ड्यूरेशन का वेब सीरीज देख रहे हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लुक अलाइक सेम टॉपिक के ऊपर और ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के ऊपर तुमको सजेशन बॉक्स में आएगा। दैट इज association rule, and that totally done through a priori algorithm and AP growth algorithm। ठीक है, अब समझ में आया सर एसोसिएशन लर्निंग क्या होता है? सर वो रिकमेंड करता है तो ये सुपरवाइज लर्निंग में नहीं आ जाएगा? रिकमेंड जब करता है तब वो आता है, लेकिन वहां पे लिखता है यू मे लाइक, वो रिकमेंड नहीं कि तुम कर दो। तुम जैसे एक सर्च कर रहे हो, ठीक है, एक सर्च इंजन सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या होता है, तुम्हें वो टोटली उस कैटेगरी का लिस्ट दे देता है। यहाँ पे क्या करता है, यू मे, यहाँ पे देखो रिकमेंडेशन टर्म कहीं पे नहीं लिखा रहता है। जो फ्लिपकार्ट जैसे अमेजोन वो में देखो, रिकमेंड करता है, जो रिकमेंड जैसे करता है आप वो बोले सुपरवाइज सजेस्ट। लर्निंग में चल जाता है, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑलवेज सुपरवाइज लर्निंग, क्योंकि एक सुपरवाइज कर रहा है तुम्हारा सर्च को। यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सर। सेम कैटेगरी का तुमको सजेशन दे रहा है। यू कैन से सजेशन इंस्टेड ऑफ रिकमेंडेशन। यस सर। मैं तुम्हें कॉलेज पे रिकमेंड कर रहा हूं, मैं तुम्हें कंपनी में रिकमेंड कर रहा हूं, दैट मीन्स के वहां पे तुम जाओगे तो यू विल गेट सम आउटपुट, लेकिन मैं यस तुम्हें सर। एक सजेशन दे रहा हूँ। डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेशन एंड सजेशन, मैं तुम्हें एक सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मे बी तुम उस सजेशन को अप्लाई करो ना करो, मे बी तुम्हारा आउटपुट आए ना आए, मैं तुम्हें तुम्हारा पैटर्न वाइज एक सजेशन दे रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। दिस इज द मेन टर्म्स के फ्लिपकार्ट से मैं अगर एक सामान खरीदता हूँ, मुझे रिकमेंड दिया जाता है, ठीक है। जो रेफर, मेनली रेफर टर्म सुने हो, रेफरेंस, रेफर, अपने दोस्त को रेफर करो 200 रुपया मिलेगा, हाँ, अपने दोस्त को रेफर करो ये टिकट मिलेगा, दैट इज रिकमेंडेशन, ठीक है। यस सर। सजेशन क्या है, जो तुम लोग फीडबैक देते हो, उस फीडबैक के ऊपर डिपेंड करके तुम्हें एक ऑब्जेक्ट का सजेशन देता है। यू मे बाय और नॉट, जैसे तुम एक सामान अगर खरीद रहे हो, तो सपोज एक फोन अगर तुम खरीद रहे हो, तो देखोगे जैसे ही तुम परचेज में क्लिक करोगे, फोन के साथ तुम्हें स्क्रीन कवर, बैक कवर, एक हेडफोन, ये प्लस प्लस करके तुम्हें सजेशन देगा। यस सर। दैट सजेशन इज अनसुपरवाइज्ड। के फोन के साथ देखो, फोन के कैटेगरी के साथ मुझे फोन में ब्राउज कर रहा हूं, लेकिन मुझे वो हेडफोन का सजेशन दे रहा है। अगर ये सुपरवाइज होता तो नहीं होता, है ना। जी सर। मुझे, मैं फोन खरीद रहा हूं, मुझे एक चार्जर का सजेशन दे रहा है।
तो ये सुपरवाइज होता तो नहीं, ये अनसुपरवाइज इसलिए क्या है, पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रहा है कि फोन के साथ क्या सेंट्रॉइड है फोन का, और वो हेडफोन और चार्जर या बैक कवर या कवर स्क्रीन गार्ड ये सब का सेंट्रॉइड सेम है। सो सजेशन दे विल गिव, रिकमेंडेशन, तुम्हें अगर एक फोन खरीदोगे, नेक्स्ट देखोगे, अगर सर्च में जाओगे तुम्हें फोन का ही मॉडल दिखाएगा। समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकमेंडेशन एंड सजेशन? यस सर। ठीक है। नाउ देखो, अब ये जो तुम्हारा सजेशन या तुम्हारा ये रिलेशनशिप एसोसिएशन लर्निंग के थ्रू मिलता है, उसका 3 मेट्रिक्स, की मेट्रिक्स, आई कैन से की मेट्रिक्स फॉलो करता है, की मेट्रिक्स फॉलो करता है। फर्स्ट वन इज सपोर्ट। तुम लोग अगर विदाउट लॉगिंग कुछ परचेज करोगे या विदाउट लॉगिंग एज ए गेस्ट कुछ करोगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तुम्हें ट्रैक नहीं कर पाएगा। कर पाएगा? अगर तुम एज ए गेस्ट लॉगिन कर रहे हो और एज ए गेस्ट तुम ब्राउज कर रहे हो, तो देखोगे सजेशन कभी नहीं आएगा। इनकॉग्निटो मोड में अगर तुम गूगल में कुछ सर्च करो तो उसका सजेशन कभी नहीं आएगा। तुम अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन में तुम एज ए गेस्ट विदाउट लॉगिन एज ए गेस्ट तुम उसको खरीद रहे हो, उसका कभी सजेशन नहीं आएगा। तो सजेशन लाने के लिए या मुझे ये एसोसिएशन रूल फॉलो करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। दैट इज मैं क्या क्या डेटा ले रहा हूं वो एक्सेस करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, दैट इज सपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट कि मैं एक सामान, नंबर ऑफ सामान, ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट पे ब्राउज कर रहा हूं तो वो सजेशन नहीं दे पाएगा। मैं मुझे क्या करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा या ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा या विश लिस्ट में रखना पड़ेगा, ताकि सिस्टम को कॉन्फिडेंट आए, हाँ मेरा ये पैटर्न में फॉलो कर रहा हूं। दैट इज नोन एज कॉन्फिडेंट। एंटायर डेफिनेशन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है। नेक्स्ट है लिफ्ट। लिफ्ट, ठीक है। तो लिफ्ट मीन्स सपोज के मैं फोन खरीद रहा हूं, ठीक है, लिफ्ट, ये टर्म थोड़ा अच्छे से समझना, ठीक है, क्योंकि इसके नाम के साथ टेक्निकल सिमिलरिटीज बहुत कम है। लिफ्ट इज लिफ्टिंग समथिंग, ठीक है। तो सपोज मैं फोन देख रहा हूं फ्लिपकार्ट या अमेजोन में, फोन देख रहा हूं और एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, मैं कुछ फोन्स को विश लिस्ट में रखा हूं, बकेट में रखा हूं, कार्ट में रखा हूं, लेकिन जब मैं ऑर्डर करने का टाइम है, ठीक है, तो मैं एक जोड़ा जूता खरीद के ऑर्डर कर लिया, ठीक है। नाउ कैन यू प्रेडिक्ट द अपकमिंग आउटकम? कैन यू प्रेडिक्ट द अपकमिंग आउटकम के अगले बार मैं क्या सर्च करूंगा या मैं मुझे क्या खरीदना है? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर। तो हाँ, सोनू कुमार मेहता, डू यू वांट टू से समथिंग? रेज योर हैंड इज रेज्ड। डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। ओके। सो सपोज मैं जो एग्जांपल दिया हूँ कि मैं एक बार फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहा हूँ, न्यूमरस नंबर ऑफ फोन्स मॉडल को सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं चेकआउट का टाइम आया हूँ, एक जोड़ी जूता खरीद के मैं निकल आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं लैपटॉप सर्च कर रहा हूँ, जब चेकआउट का टाइम आया मैं क्या कर रहा हूँ, एक तुम्हारा 2 पेन खरीद के निकल आया हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरा ट्रांजैक्शन किस
इक्विपमेंट के ऊपर होगा, कैन यू प्रेडिक्ट? नो सर। नो। सर शूज और ये पेन के ऊपर होगा ना। दैट मीन्स ये जो लिफ्ट है दैट डिनोट्स के जो मैं सर्च कर रहा हूं, ठीक है, या जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, उसमें से मैं कितना आउटकम दे रहा हूं, कितना मैं चीज को कलेक्ट कर रहा हूं। लाइक मैं फोन सर्च कर रहा हूं, ठीक है, फोन, हेडफोन एंड लेट इट बी चार्जर, ये तीन चीज में सर्च कर रहा हूं। इन तीनों में से मैं कितना ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, दैट इज लेट इट बी मैं एक हेडफोन खरीदा और नेक्स्ट टाइम मैं चार्जर खरीदा हूं, ठीक है। तो यहां देखो मैं सर्च कर रहा हूं 1 2 3 आइटम और मैं खरीद रहा हूं 1 2। सो व्हाट इज द रेशियो? सर्च आइटम 3, परचेज आइटम 2। तो व्हाट इज द रेशियो? दैट इज 6.666, ठीक है। तो दैट मीन्स 66% माई ट्रांजैक्शन रेट, sorry, that is there's a mistake, that is 0.6666, ठीक है। तो मैं वहां मेरा ट्रांजैक्शन रेट है 66%। तो ये जो 66% में ये तीन सामान देखने के बाद मेरा ट्रांजैक्शन रेट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब फ्लिपकार्ट खोलूंगा वो मुझे फोन एंड मोबाइल एक्सेसरीज दिखाएगा। दैट इज चार्जर अभी दिखाया, हेडफोन अभी दिखाया, फोन अभी दिखा रहा है, देख रहा है कि मेरा ट्रांजैक्शन रेट है, रेशियो है 0.66, दैट मीन 66%। तो नेक्स्ट टाइम वो मुझे क्या दिखाएगा? पावर बैंक दिखाएगा, मेमोरी कार्ड दिखाएगा, ठीक है। तो यहां समझ में आया ये लिफ्ट वाला पोर्शन? यस सर। दैट इज मेरा प्रोडक्ट ऑलरेडी परचेज्ड, ठीक है, और प्रोडक्ट आई सर्च्ड, ठीक है, इसका जो रेशियो है, ठीक है, वो मेरा लिफ्ट कहलाएगा। और लिफ्ट का वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे मैं एक आर्बिट्रेरी तुम लोगों को समझाने के लिए दिया हूं। तो लिफ्ट का क्या वैल्यू होगा, कैसे लिफ्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा, आई विल शो इन योर नेक्स्ट क्लास। सो आज यहीं तक रहने दे, यस और नो, या आगे बढ़े? यस सर। ओके। तो अभी तक किसी का कोई डाउट? अभी तक किसी का किसी में कुछ डाउट? नो सर। नो सर। ओके। सो मैं बिफोर गोइंग टू अटेंड द नेक्स्ट शेड्यूल क्लास दैट इज ऑन थर्सडे सैटरडे, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन में तुम लोग का इंटरेस्ट आ रहा है, यस और नो? यस सर। आ रहा है सर। श्योर? तो यस सर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। और एक बात मैं ओके,